ابھی آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اٹھے رہے ہیں تو میں ان کے حوصلے کو، ان کے عزم کو میں جانتا ہوں۔ میں اس گھرانے کے سیاسی قد کاٹ کو پہچانتا ہوں۔ چودھری ظہور الہی صاحب کا جو ایک سیاسی مقام تھا وہ پورا پنجاب جانتا ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس روایت کو، اس وفاداری کو چودھری پرویز الہی صاحب نے جس انداز میں، اور ان کے بیٹے نے، مونس نے جس انداز میں اس کو آگے بڑھایا ہے، اس روایت کو قائم رکھا ہے، دنیا جانتی ہے۔ یہ بھی جانتی ہے دنیا کہ جب شریف فیملی پر ایک مشکل وقت آیا تو چودھری صاحبان نے ان مشکلات میں اضافہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی آسانی پیدا کی ہو سکتا ہے انہیں ریلیف دلوانے کی کوشش کی ہو۔ عمران مسعود صاحب کھڑے ہیں، ہم کولیگز ہیں اور کولیگ رہے ہیں، اور ان کے بھی اس خاندان سے پرانا تعلق ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کس طرح انہوں نے جب وہ حزب اختلاف میں تھے اور یہ اقتدار میں تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کو ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا۔ کاش جنہوں نے کل حملہ کیا وہ ان روایات کو یاد رکھتے، ان احسانات کو انہوں نے ذہن نشین رکھا ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتے۔ بہرنو وقت گزر جائے گا اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے۔ تحریک انصاف ایک آزمائش سے گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی واقعات زمان پاک پہ دیکھے آپ نے۔ عمران خان صاحب کے گھر پر جس طرح حملہ کیا گیا، جس طرح کل رات آپ کے گیٹ توڑے گئے، اسی طرح عمران خان صاحب کے گیٹ توڑے گئے، اسی طرح ان کی اہلیہ گھر میں تنہا تھی، اکیلی تھی، وہ اسلام آباد تھے پیشی پہ گئے ہوئے، چادر چار دیواری کا خیال نہیں رکھا گیا اور نوکروں کو پریشان کیا گیا، جیسے آپ کے ملازمین کو گرفتار کر کے لے گئے، خواتین کو پریشان کیا، جی اور کچھ مسنگ بھی ہیں۔ تو یہ آزمائش میں سے وہ بھی گزرے ہیں، آج آپ گزر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک مقدمے سے آزاد ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں دھر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، اظہر مشوانی ہیں، میں کس کا نام لوں، جو ان پہ بیتی ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ میری یہ گزارش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں سے، اور جو عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے، کہ اس آزمائش میں ہم نے بکھرنا نہیں ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے، ہم نے یکجا ہونا ہے۔ ہم نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس فسطائیت کے مظاہرے کے باوجود چودھری صاحبان نے قانون کا راستہ اختیار کیا، عدالتوں کے سامنے گئے اور عدالتوں سے ریلیف مانگی اور مانگ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیں انصاف دے گی۔ شکریہ۔ جی یہ بتائیں کہ آپ سیاستدان ہیں، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ، دوسری طرف مقدمات بھی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہیں، اب آپ کیا جو مذاکرات ہیں ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایک ٹیبل پہ یہ معاملات حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا ایک جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی 4 سال رہی ہے، ادارے اسی طرح سیاسی اعلی کار بن کے استعمال ہوتے رہے، آپ بھی ہو رہے ہیں،
ये कब तक ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा? देखिए, कल हमारी नशिस्त हुई और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब की वहाँ पेशी थी। तो जब हम वहाँ से लौटे तो पता चला हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। उन पर FIR नहीं थी, उन्होंने कोई कानून शिकनी नहीं की थी, कोई नुक्से अमन का वाकया नहीं था, कुछ वहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ। गाड़ी में बैठे लोगों को उठाया गया और इस्लामाबाद पुलिस ले गई। तो जब मैं गया वहाँ मुज़ाकराती टेबल पर, तो मैंने वहाँ डार साहब से और जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, उनसे कहा कि ये मुझे समझाइए, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियाँ, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है? तो बता दीजिए। बाहर नौ उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए महसूस किया कि मेरी बात में वज़न है, तो उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला से बात की और उन 33 हमारे कारकुनान को, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी थे, उनको रिहा किया। और फिर हमने नशिस्त की और नशिस्त करके जब घर लौटे और रात को ये खबर मिली। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे डार साहब का फ़ोन, और वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। तो मैंने उनके सेक्रेटरी से कहा कि पहले मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर जा रहा हूँ, मैं उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, मैं सारी जो रुएदाद है उससे वाकिफ़ होना चाहूँगा और उसके बाद मैं डार साहब से यकीनन गुफ्तगू करूँगा। मैंने फैमिली से मिला हूँ, मैं आमिर सईद साहब से मिला हूँ, ये सारी उनकी कानूनी चाराजोई और पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की। मैंने इनसे सारा हाल लिया है और इस तनाजुर में मैं डार साहब से बात करूँगा। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वक्त का जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी, आप कह रहे हैं पूरी उम्मीद है और ख्वाजा आसिफ बड़े मैं अर्ज़ करूँ जी, अर्ज़ ये है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तहरीक इंसाफ की बात कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज़्यादा बात किए उनसे बात किए करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। ख्वाजा साद हकीक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती, MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शर्मा से बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर वन पॉइंट एजेंडा जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है
उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं, और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हम तो उसके पाबंद हैं। हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरखास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नजरसानी के बाद टिकटें जारी की हैं, हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे जाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पीडीएम और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वजीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। तो ये फैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं, और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। मैं पहले जमान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली जफ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं, और मायानाज कानूनदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाजा उनको होगा, मुझे नहीं है। लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं। सर ये बताइएगा कि जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो? देखिए बात सुनिए। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो बक पास ऑन कर दे किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुल कर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुल कर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुल कर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप लें और कहें हाँ हमने किया है। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है। कल का आप जब रिकॉर्ड से देखिए, नीचे जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है। कोर्ट का ऑर्डर 28। थैंक यू जी। चौधरी परवेज इलाही चौधरी परवेज इलाही जिंदाबाद। इस वक्त लाहौर में शाह महमूद कुरैशी परवेज़ इलाही के घर के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि ज़मानत के बावजूद गिरफ्तारी के लिए आना काबिल मज़म्मत है। उनका कहना ये था कि कल के वाक़े से बहुत सदमा पहुंचा है।